دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر ہر نبی سے ملاقات کی۔ بیان فرماتے ہیں جس آسمان پر بھی جاتے وہ آسمان سجا ہوا، فرشتے دست بستہ کھڑے ہیں، انبیاء اکرام مبارکبادیں پیش کر رہے ہیں، انبیاء اکرام مبارکبادیں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری چل رہی ہے، اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری چلتی چلی گئی، ہر نبی سے ملاقات کرتے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد سدرہ پر پہنچے، جب سدرہ پر پہنچے تو جبریل امی رک گئے، جبریل امی رک گئے۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل کیا مسئلہ ہے، آگے پرواز؟ کہا آقا بس میری رسائی یہیں تک ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، آقا میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اگر ایک بال کے برابر بھی میں آگے گیا تو میرے پر سب جل جائیں گے۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل یہ تمہارا پاور ہے کہ تم سدرہ تک آ سکتے ہو، لیکن سنو اب آمنہ کے لال کا پاور دیکھو۔ کہا جو جبریل فرشتوں کا سردار ہے وہ سدرہ تک رک جاتا ہے، اور اس سے آگے اگر کوئی جاتا ہے تو آمنہ کا لال جاتا ہے۔ فرمایا اس سے آگے اگر کسی کے اندر پاور ہے جانے کا، جبریل نے کہا آقا پر جل جائیں گے، آقا نے فرمایا پھر آمنہ کا لال جائے گا، آمنہ کا لال جائے گا، اللہ اکبر۔ امام الانبیاء اب بیان فرماتے ہیں یہاں سے جو براق تھا وہ بھی چینج ہو گیا، اب براق نہیں، یہاں سے اب رف آ گیا، رف یہ نور کی سواری تھی، یہ کائے کی تھی؟ نور کی سواری تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اب مسئلہ دوسرا ہے، اب یا تو صفات رب کی جو صفات ہیں ان کی تجلیہ، پھر رب کی ذات کی تجلیہ، تو پھر یاد رکھیں آگے وہی چیز جا سکتی ہے جو صرف نور ہو، جو صرف نور ہو۔ وہ جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہیں، میں کہتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر رب کی صفات کے عکس کی تجلی دیکھی تھی، وہ بھی پہاڑ پر پڑتے ہوئے دیکھی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہو کر کے تاب نہ لا سکے۔ میں کہتا ہوں تو نے کیسے کہہ دیا میرے مصطفیٰ کو ہماری طرح ہیں؟ اگر میرے مصطفیٰ ہماری طرح ہوتے تو سدرہ سے آگے نہ جاتے، پتہ لگا سدرہ سے آگے اگر کوئی گیا تو وہ نور ہے، اور میرے مصطفیٰ نور ہیں، نور۔ فرمایا جب بشر میں آتے ہیں تو بشری لباس پہن کر کے آتے ہیں، اور جب رب سے ملنے جاتے ہیں تو نوری لباس میں جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے حضرت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نوری لباس میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا ہماری طرح نہیں، عشق و محبت کے امام نے پیغام دیا کیا؟ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے والا وہ والا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ میرے آقا کی ذات مقدس ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہاں پہنچے؟ کہاں پہنچے؟ لا مکاں پہنچے، لا مکاں پہنچے۔ بیان فرماتے جہاں کوئی جہہ طرف کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، وہ کون سی جگہ تھی؟ رب جانے، رب کا محبوب جانے، سبحان اللہ، رب کا محبوب جانے۔ پھر کتنا قریب ہوئے تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَقَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ قوس، توجہ دینا، کمان دیکھیے، کمان
जिस तीर को जिसमें रख कर के फेंका जाता है, तीर को जिसमें रख कर के फेंका जाता है, छोड़ा जाता है, तो उसे जिसमें तीर रखते हैं उसे कमान बोलते हैं, कमान। कमान। तो उसका फासला छोटा सा होता है, जो फासला होता है जब वो मुड़ कर के आती है तो उसका फासला थोड़ा सा एक हाथ का फासला रह जाता है। तो बयान फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़काबा कौसैनी औ अदना, फरमाया मेरा महबूब मेरे इतने नेड़े हुआ, इतने करीब हुआ कि जो कौस है, जो कमान है, बयान फरमाया उतना, फिर रब ने इरशाद फरमाया औ अदना, या उससे भी कम, यानी फासला इतना भी नहीं था बल्कि उससे भी कम फासला था। अल्लाहु अकबर। अब तवज्जो के साथ सुनना, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतना करीब से देखा, कितना करीब से देखा। मियाँ ये हमारी तुम्हारी दूरी बहुत है, बहुत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को प्यारे नबी ने बहुत ही ज़्यादा करीब से देखा, और फिर उसमें राज की बातें हुई, राज की बातें हुई। उन बातों में से एक बात बता दूं, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से एक मर्तबा बहुत खुश हुए। मेरे नबी ने फरमाया आयशा चलो मांग लो, आज क्या मांगना चाहती हो? कहा आका दोगे? कहा हाँ। कहा आका समझ में नहीं आ रहा है, आपको पा लिया तो मिल तो सब कुछ गया, अब मांगू क्या? आका थोड़ी सी मोहलत दे दें, मैं अपने बाबा अबू बकर सिद्दीक से मशवरा कराऊं। मांगना क्या है देखे तो सही, देखे तो सही। शहजादी हो तो ऐसी, अल्लाह अकबर, शहजादी हो तो ऐसी। अब कहा मेरे नबी ने ठीक है मशवरा कराओ, मशवरा कराओ। अब आई हज़रत अबू बकर के पास, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में सलाम अर्ज़ किया। कहा अब्बा हुज़ूर? कहाँ बेटा? कहा आज इमामुल अंबिया बहुत खुश हैं, मेरे आका ने फरमाया खुशी में आयशा मांग लो जो मांगना चाहती है। तो मेरे समझ में तो नहीं आया मैं मांगू क्या? आका को पा लिया तो पा तो सब कुछ लिया, अब तो न जन्नत बची। क्यों? इसलिए कि जन्नत वाला मांग लिया है। जब जन्नत का मालिक मिल गया तो जन्नत तो खुद ब खुद अपनी हो गई। अब मांगू क्या मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं इजाज़त लेकर के आई हूँ, आप बता दें मांगू क्या? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया पहले वादा करो, आका बताएंगे तो मुझे भी बताओगी आकर? आका बताएंगे तुम्हें तो मुझे भी बताओगी आकर के? कहा हाँ मैं वादा करती हूँ आपको भी बताऊंगी, आपको भी बताऊंगी। फरमाया सुनो तो जाओ और आका करीम की बारगाह में अर्ज़ करना आका मेराज को तशरीफ़ ले गए थे, कुर्बे ख़ास में पहुँचे थे, अल्लाह को सर की आँखों से देखा था, तो रब से कुछ राज़ो न्याज की बातें भी हुई थी। उन राज की बातों में से एक बात बता दें। उन राज की बातों में से अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे नबी की बारगाह में आई। हाज़िर होने के बाद अर्ज़ करने लगी या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे नबी ने फरमाया हाँ मांग लो जो मांगना चाहती हो, अगर मशवरा हो गया तो चलो मांगो। अल्लाह अकबर। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रब कदीर ने मेरा जैसा मौजज़ा अता फरमाया, आप रब के कुर्बे ख़ास में पहुँचे, अल्लाह को सर की आँखों से देखा, मेरे रब का दीदार करने के बाद मेरे रब से आपने कुछ राज़ो न्याज की बातें भी की। अल्लाह अकबर। कहा या रसूलुल्लाह अब मांग लूँ? मेरे नबी ने फरमाया हाँ आयशा आज दरियाए रहमत जोश में है, मांग लो। फरमाया मेरे अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर जो राज की बातें हुई थी उन राज की बातों में से एक बात बता दें। मेरे नबी ने इतना सुना तो मेरे नबी मुस्कुरा दिए, मेरे नबी मुस्कुरा दिए। किस बात पे? तो मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया या तो मेरे नबी इस बात पे मुस्कुराए मेरे यार का कितना प्यारा इंतखाब है,
मांगा तो इल्म मांगा, सुभान अल्लाह कह दें, मांगा। या फिर बयान फरमाते हैं इस बात पर मेरे आका मुस्कुराए, ये तो बात राज की है, मेरी और मेरे रब के दरमियान की। अगर मैं बता दूं तो राज राज नहीं, और ना बताऊं तो फिर ना कैसे हो सकता है इस बारगाह में, ये तो हो ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर। तो बयान फरमाते हैं मेरे नबी इस बात पे मुस्कुराए, लेकिन फिर मेरे नबी ने फरमाया सुनो, जो राज की बातें हुई थी उन राज की बातों में से एक बात बताता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जब राज की बातें हो रही थी तो मेरे रब ने इरशाद फरमाया, महबूब सुनो, तुम्हारे उम्मतियों में से कोई भी उम्मती अगर दो टूटे हुए दिलों को दिलों को जोड़ देगा, अल्लाह उसे बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहेंगे, सुभान अल्लाह, बात जन्नत की आ गई है। सुभान अल्लाह, सुभान क्या फरमाया? राज की बातों में से एक बात ये है, जो दो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के जन्नत। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इतना सुना, सुनने के बाद अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह माजरत चाहती हूँ, बाबा से फिर मिलना चाहती हूँ। सुभान अल्लाह। कहा आयशा वादा पूरा करना चाहती हो? अल्लाह अकबर। दौड़ती हुई अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आई, और दौड़ने के बाद मेरे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, पूछ आई हो? कहा हाँ पूछ लिया है। कहा क्या बताया? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अल्लाह अकबर। अर्ज़ करने लगी, अब्बा इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, रब्बे कदीर ने राज की बातों में से एक राज की बात ये बताई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, जो बंदे मोमिन किसी दो टूटे हुए दिलों को अगर जोड़ देगा, अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के उसे जन्नत अता फरमाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने इतना सुना तो रोने लगे, इतना सुना तो रोने लगे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया, अबू बकर मेरे बाबा रोते क्यों हैं? ये तो खुशी की बात है, आपने तो ना जाने कितने टूटे हुए दिलों को जोड़ा है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया आयशा, तुमने मेरे नबी की मुबारक बात, मुबारक हदीस का एक रुख देखा, इसका दूसरा रुख नहीं देखा। कहा सुनो, इस